અને એ વખતે એવો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો કે દરેક સ્ટેટ એકચ્યુઅલી 74મો બંધારણીય સુધારો આપતા તો બધાને ખ્યાલ છે કે મેયરશ્રીને સત્તા આપવા, મેયર ઇન કાઉન્સિલ બનાવવા માટે, મેયરશ્રીને સત્તા આપવા માટે આજથી લગભગ 19-20 વર્ષો પહેલા આપણા ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન રાજીવ ગાંધીજીએ એક બંધારણીય સુધારો મૂક્યો હતો અને એ અંતર્ગત દરેક સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને પાવર્સ આપ્યા હતા કે આ સુધારા અંતર્ગત એમના રાજ્યમાં આવેલી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનોને મેયર્સના પાવર વધારવા માટે જે તે સત્તાઓ આપી શકે. એ અંતર્ગત કેટલાક રાજ્યોની અંદર 74માં બંધારણીય સુધારા અંતર્ગત સુધારા કરવામાં આવ્યા. મોગેજી અને ત્યાં જે સુધારા કર્યા લગભગ 5-6 સ્ટેટ, એ બધા રાજ્યોની મોગેજી વાત કરશે, હું તમને જનરલ વાત કરી દઉં. અને એ અંતર્ગત ગુજરાતની અંદર હવે અમે એવું નક્કી કર્યું કે દરેક મહિને એક સ્ટેટની અંદર મિટિંગ કરવી. એ અંતર્ગત અમે એમને પ્રોમિસ આપી હતી ગુજરાતની અંદર અમે મેયરની કાઉન્સિલ એટલે કોન્ફરન્સ બોલાવી અને ચર્ચા કરીશું. આજે ચર્ચા થઈ છે, એની અંદર બધા પાસેથી મુદ્દા લીધા છે. મધ્યપ્રદેશ અને બીજા સ્ટેટ જેની અંદર થોડા સુધારા થયા છે, કયા પ્રકારના સુધારા થયા છે એ બધા અમે આજે મેળવ્યા છે. હવે એ બધા મુદ્દા તારવી અને એના ઉપરથી આપણે રાજ્ય સરકારમાં કયા મુદ્દા મેયર ઇન કાઉન્સિલમાં સમાવેશ કરવો એ અંગે ચર્ચા કરી રાજ્ય સરકાર સાથે ચર્ચા કરીશું. કારણ કે આમાં પોઝિટિવ અને નેગેટિવ બંને પાસા રહેલા છે, ભયસ્થાનો પણ રહેલા છે એવું આપણે જાણીએ છીએ. એટલે નગરજનોના કાર્યો ઝડપથી થઈ શકે. અનેક વખત અધિકારીઓને કારણે ફાઇલો આગળ વધતી નથી એવી ફરિયાદો આવે છે. લોકો જે અપેક્ષા રાખતા હોય છે એ પ્રમાણે ઝડપથી કામો થતા નથી અને કાઉન્સિલરો, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન અથવા મેયરશ્રી એમને વખતો વખત ચૂંટાયેલી પાંખે અધિકારીઓ પાસે વખતો વખત રજૂઆત કર્યા બાદ કામો થતા હોય છે એવી ફરિયાદો પણ ઘણા વખતથી આવે છે. આ બધી બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને લોકોના પ્રાથમિક સુવિધાના કામો ઝડપભેર આગળ વધી શકે, મેયરશ્રીને સત્તા આપી શકાય અને એ દ્વારા લોકોના કામો ઝડપથી થઈ શકે. એ દ્રષ્ટિએ આજે આ મિટિંગનું આયોજન કર્યું હતું. હવે જે મુદ્દા આગળના છે અમે આવનારી મિટિંગની અંદર નક્કી કરીશું. પણ આ પ્રારંભિક આજે એક કન્સેપ્ટ કે 74મું, કારણ કે દર 2 વર્ષે મેયર બદલાતા હોય, 2-2.5 વર્ષે. 74માં એમેન્ડમેન્ટની અંદર દરેક રાજ્ય સરકારને સત્તા આપી છે. કોઈ એક સ્ટેટની અંદર 5 વર્ષને મેયરને સત્તા હોય છે, કોઈ ડાયરેક્ટ ઇલેક્શન હોય છે. આ બધાની અંદર અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની અંદર 2.5 વર્ષની સત્તા આપી છે. એટલે જે દિવસે અમે ઇન્દોર ગયા ત્યારે કેટલાક મેયરો એવા હતા કે જે 1 વર્ષની સત્તા હતા. હવે બીજા વર્ષે સપોઝ મિટિંગ થાય એ વર્ષે નવા મેયર હોય એટલે એમને આઈડિયા ન આવે. એટલે 74માં એમેન્ડમેન્ટમાં દરેક સ્ટેટની અંદરથી એવું પ્રેઝન્ટેશન કરી અને આ મુદ્દાને આગળ વધારવા માટે એની સંયુક્ત રજૂઆત એ વખતે પણ થઈ હતી અને એ અંતર્ગત આજે આ કોન્ફરન્સ રાખી છે. ડિટેલમાં જે માહિતી છે આપને કોપી દ્વારા મળી જશે, ઝેરોક્ષ આપી છે. હું માન્ય મોગેજીને વિનંતી કરું કે હવે આપને બ્રીફ કરે. सब बंधुओं को नमस्कार। आज अहमदाबाद में गुजरात प्रदेश के सभी मेयर्स की मीटिंग थी। विशेष रूप से आज मैं यहाँ पर आया तो पहला उद्देश्य तो यही था कि स्थानीय बॉडी का गठन होना चाहिए और इसलिए उस स्थानीय बॉडी का यह गठन हुआ, जिसके लिए मैं गुजरात के सभी मेयर्स के लिए धन्यवाद देता हूं। आज के एजेंडे में 4-5 विषय थे जिसको लेकर हमने चर्चा की है। एक आध विषय पर चर्चा होना है जो इसके बाद में होगी। पहला था कि जो 91 में 74 अमेंडमेंट आया, आज उसको हर प्रदेश ने अपने अपने हिसाब से क्रियान्वित किया है। इस 74 अमेंडमेंट में बड़ा स्पष्ट है कि देश के अंदर 3 प्रकार की सरकारें काम करेगी: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और इसलिए जब लोकल सेल्फ को उसको गवर्नमेंट माना तो 2 प्रकार के अधिकारों की बात स्वाभाविक रीति से आ जाती कि एक,
वो टैक्सेशन लगाने की उसको पात्रता रहेगी। और सेकंड थिंग कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के अर्थात दंड देने के भी अधिकार रहेंगे। और जैसा केंद्र और राज्यों के अंदर कार्यों का विभाजन है, केंद्रीय कार्य सूची है, स्टेट राज्य कार्य सूची है, और दोनों के बीच में एक समवर्ती सूची है कि जिसके ऊपर कौन किसका अधिकार रहेगा, ये संविधान ने बड़ा स्पष्ट किया है। और वैसे ही लोकल बॉडी के काम क्या रहेंगे, इस 74वें संविधान संशोधन के बाद में बड़े स्पष्ट किए गए, किंतु उनको क्रियान्वित न करने के कारण आज कई प्रकार की कठिनाइयां ये स्थानीय निकायों के लिए आती है। और इसलिए उस 74वें संविधान संशोधन के ऊपर चर्चा और उसके क्रियान्वयन के लिए ये एक आज का विषय था। दूसरा विषय, जो केंद्र पोषित योजनाएं चलती हैं, और केंद्र पोषित योजनाएं जो चलती हैं, जिसमें अभी JNNURM का फर्स्ट फेज समाप्त हो गया, सेकेंड फेज के ऊपर उसका ड्राफ्ट बन रहा है। और वैसे ही अभी रे करके एक राजीव आवास योजना का भी शुभारंभ ये केंद्र सरकार ने किया है। अब वास्तव में उसमें देखने में तो लगता है कि 50% का हमको अनुदान ये केंद्र सरकार देगी, 20% का अनुदान जो है वो राज्य शासन देगी, और 30% का जो अनुदान है वो हितग्राही और स्थानीय निकाय मिलाएंगे। किंतु उस मकान के या बस्ती के विकास के अंतर्गत कई चीजें ऐसी हैं कि जिसको उन्होंने मान्य नहीं किया है। अर्थात जैसे मकान बना के देंगे, उसमें टेरेस वाली जगह है, आगे पार्किंग वाली जगह है, उसको उन्होंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में नहीं माना, और उसके कारण ये जो 30% का हिस्सा है ये स्वाभाविक रीति से नगर निकाय का बढ़ जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी केंद्र की किसी भी योजना के अंदर जो दिक्कत आती है, तो कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, जैसे आज हमने वो प्रोजेक्ट बना के दिया, उसके पास होने में वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष का समय लगता है। स्वाभाविक है कि इसके अंदर कीमतें बढ़ जाती है, और एक्सीलेशन का कोई प्रोविजन इसमें न होने के कारण जो शुरुआत में 30% की बात कही जाती है, वो धीरे धीरे 50% तक पहुंच जाती है। और वास्तव में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और स्थानीय निकायों का काम मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना है, और इस योजनाओं के अंदर इतना पैसा लगने के बाद में स्वाभाविक रीति से जो आर्थिक स्थिति नगर निकायों की है वो खराब हो जाती है। और इसलिए इस गाइडलाइन के अंदर भी परिवर्तन होना चाहिए, इस बात को हम लगातार उठाते आए हैं। आज भी उस विषय में यहाँ चर्चा होगी, और इसके ऊपर परिवर्तन ये अपनी गाइडलाइन में सेंट्रल गवर्नमेंट करे, ये हमारी दूसरी मांग है। और तीसरा, जैसा मैंने कहा कि जो विसंगतियां हैं, उसमें आज कहीं 5 वर्ष में इलेक्शन होते हैं, मेयर के इलेक्शन डायरेक्ट होते हैं, और कहीं 1 वर्ष का ही, अब दिल्ली जैसे में 1 वर्ष का ही कार्यकाल है। इसमें कोई परफॉर्मेंस देना संभव नहीं है, क्योंकि नगर निगम के सारे काम को समझना, स्टाफ तक परिचय होना 4-6 महीने तो इसमें ही लग जाते हैं, और उसकी काम की शुरुआत होती है और उसका पीरियड समाप्त हो जाता है। और इसलिए ये हमारी मांग है कि पूरे देश के अंदर समान 5 वर्ष का कार्यकाल रहना चाहिए, मेयर के डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, और मेयर इन काउंसिल का गठन हो ताकि सही अर्थों में वो काम करने की उसकी को अधिकार भी मिले और वित्तीय अधिकार भी हो। और इसलिए आज जैसा मैंने कहा कि 2-3 विषयों को लेकर मैं यहाँ पर आया था, और इस मेयर एंड काउंसिल के गठन के पीछे एक हेतु और भी है कि कोई नगर निकाय अगर अच्छा काम कर रहा है
तो ये आपस में विचार विमर्श भी हम इसमें करते हैं और उस विचार विमर्श के कारण स्वाभाविक है कि प्रेरणा मिलती है। जैसे यहाँ पे साबरमती का जो प्रोजेक्ट लिया गया है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। जयपुर में जो सीवरेज वाला उन्होंने उससे बिजली निर्माण का प्रोजेक्ट लिया, मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो ऐसे हम कई प्रोजेक्ट के बारे में विचार विमर्श भी करते हैं और मुख्य रूप से इस मेयर इन काउंसिल के माध्यम से हम जो स्थानीय शासन की दिक्कतें हैं उनको स्थान के ऊपर उठाते हैं। गुजरात में अभी तक इसकी लोकल बॉडी नहीं थी और इसलिए इस लोकल बॉडी के गठन का भी आज मुख्य बैठक का उद्देश्य था, जो पूरा किया है। और मैं समझता हूं कि ये जो 3 मुद्दे मैंने कहा, राजीव आवास योजना का है, JNNERM का है और 74वें संविधान संशोधन का है, इनको लेके हम आगे पार्लियामेंट में भी इस विषय को उठाने वाले हैं। अभी कई पार्लियामेंट मेंबर्स से मेरी चर्चा हुई कि इसकी गाइडलाइन में परिवर्तन होना चाहिए, अन्यथा आर्थिक ढांचा ये स्थानीय निकायों का अगर 30% की ये राशि रही और एक्सीलेशन का विशेष रूप से विचार नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत होने वाली है। इस समिति में भ्रष्टाचार रोकने के लिए मेयर को सत्ता देने में आएगी। ऐसा है कि करप्शन का विषय पावर ट्रांसफर से नहीं होता। आपको भ्रष्टाचार तो अगर कमिश्नर के पास में सारे पावर्स हैं और मेयर के पास में नहीं है तो उससे कमिश्नर को होगा इसलिए करप्शन नहीं होगा और मेयर के पास में आएगा तो करप्शन होगा। सवाल यह है कि जब आज डायरेक्ट इलेक्शन होता है तो लगभग 15 लाख के आसपास वोटर्स उसको चुनते हैं और 15 लाख के आसपास वोटर्स चुनते हैं तो जनता के लिए जवाबदार वो है। आज 15 लाख से इलेक्शन करा के उसको जिता के लाना और अधिकार कमिश्नर को देना, तो आखिरकार जो रिस्पांसिबिलिटी उसने जनता को दी है उसको वो कैसे पूरा करे। और इसलिए अधिकार तो दिए ही जाना चाहिए, तब वो परफॉर्मेंस दे सकता है। जहां तक करप्शन का सवाल है तो करप्शन रोकने के लिए तो जो व्यवस्थाएं उन व्यवस्थाओं का पालन करना चाहिए, पारदर्शिता लाना चाहिए और जो ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आ रहा है और उसको जो कंप्रोमाइज करने वाली बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उससे करप्शन के अंदर अंतर आएगा। कोई राज्य में सुधार हुआ है? पहले बोला पहले के MP वगैरह में कुछ हुआ है? मध्य प्रदेश में लगभग 74वें संविधान का 70 से 80% मामला क्रियान्वित हुआ है और वो क्रियान्वित होने का परिणाम काफी अच्छा है। काम के अंदर गति आई है, स्थानीय निकाय सक्षम बने हैं और उसके कारण मूलभूत सुविधाओं के अंदर भी निश्चित रूप से अंतर आया है। यहाँ तो असित भाई झड़प से करवा सकते हैं, यहाँ भी भाजपा है, ऊपर भी भाजपा है राज्य में। हाँ, अगर राज्य को ही करना है तो गुजरात में ज्यादातर कॉर्पोरेशन भाजपा के पास है, वो मांग किए बिना ही कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। और इसलिए जैसा आपने कहा कि गुजरात के अंदर जो 8 नगर निगम है उसमें से 6 भाजपा के पास है। 80% वही बता रहा हूं मैं आपको आगे। तो मध्य प्रदेश में 19 में से 17 भाजपा के पास है और मैं ऐसा मानता हूं कि इतनी जो स्थानीय निकायों में भाजपा को सफलता मिली है उसका बहुत बड़ा कारण है कि 74वें संविधान संशोधन को मध्य प्रदेश में लागू किया और इसलिए ये वो निकाय है कि जिनको हम 3 बार से लगातार जीत रहे हैं, क्योंकि उनको सक्षम बनाया, पब्लिक की अपेक्षा को पूरी करने की स्थिति में आए, उसका परिणाम है कि हम लगातार जीत रहे हैं। मगर यहाँ भी मांग ज्यादातर तो 10 साल से हो रही है यहाँ भी, और यहाँ गवर्नमेंट भाजपा की नहीं। ऐसा है कि 91 में ये कॉन्सेप्ट आया, जैसा मैंने कहा 74वें संविधान संशोधन का, कुछ प्रदेशों ने उसको लागू किया और उसके जब परिणाम आने लगे तो 8-10 वर्ष के बाद में ये मांग उठी और आज लगभग इसमें पिछली बार इंदौर के कॉन्फ्रेंस के अंदर 59 मेयर्स ने भाग लिया था और सबकी ये मांग थी कि ये 74वां संविधान संशोधन लागू होना चाहिए पूरी तौर से। और इसलिए स्वाभाविक है कि कोई भी चीज आने के बाद में उसमें
समय लगता है, उसके जब परिणाम देखे तो लोगों की मांग भी बढ़ना प्रारंभ हो गई। आपने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये जोगवाई है उसका अमल नहीं होता है, बंधारण में ये चीज है? नहीं, क्या आपने बोला कि बंधारण के अंदर ये चीज है मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, तो बंधारण में है 74 जो है सेक्शन उसका अमेंडमेंट हो चुका है कि अमेंडमेंट हो चुका है? अमेंडमेंट नहीं होता तो उसकी डिमांड करने का सवाल ही नहीं था। उसको अभी तो पिछली बार जब हम शहरी विकास, अभी जो बंधारण चीज नहीं है है तो मांग करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट को, कानून को पास कर दिया, कानून बना दिया। अब उसका क्रियान्वयन ये राज्य सरकारों ने करना है, वो क्यों नहीं और इसलिए राज्य सरकारें उसको नहीं कर रही। नहीं सर, ये इतनी अच्छी बात है, आप बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है, हमको भी ऐसा लगा, तो राज्य सरकार क्यों नहीं कर रही? नहीं, अब उसके कई कारण रहते हैं। कोई भी पावर वितरित करना नहीं चाहता। मोदी साहब तो यहाँ प्रोग्रेस ही है, नई चीजों नहीं, बहुत अच्छी बात है। इसलिए इसी अपेक्षा के साथ हम मांग कर रहे हैं कि वो हमारी मांग को पूरा करेंगे। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो, हम भी बहुत अच्छा व्यक्ति मानते हैं, और इसलिए डिमांड है अच्छे हैं, वो पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में किया, गुजरात में भी उसको लागू होगा। एमपी के अलावा कोई स्टेट्स है जहां पर ये हुआ लागू हुआ? अपार्ट फ्रॉम एमपी इज देयर एनी अदर स्टेट? नहीं, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र कुछ हिस्सों में उसको लागू किया है। जैसे मैंने कहा कि पार्ट में तो कई राज्यों ने लागू किया है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन को मान्य किया है, डायरेक्ट इलेक्शन है वोट मेयर के। आंध्र यूपी में दिया। आपको लगता है कि फाइनेंशियल पावर्स देने से मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है कि हमारे यहाँ, आप इंदौर में आइए, करप्शन में 80%, 80% उसके कारण रोक लगी। फाइनेंशियल पावर्स देने से आपको लगता है कि प्रशासन में सुधार आता है? निश्चित रूप से मेयर्स को पावर दिए जाएंगे तो परफॉर्मेंस नगर निगम का अच्छा आएगा। और ये जहां जहां हुआ है उसके परिणाम है, और जिसका मैंने उदाहरण बताया कि कारपोरेशन में लगातार आज 19 में से 17 नगर निगम मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास है। और उसका बहुत बड़ा कारण है कि जो ये संशोधन उन्होंने लागू किया, पावर से मेयर को दिए, तो उसके कारण कारपोरेशन का जो परफॉर्मेंस आया, उसके कारण जनता लगातार जिता रही है। और आज आप उसको सक्षम बनाएंगे तो ही वो काम कर सकेगा। आज એક મિનિટ સાચું છે, મેયરને તમારે બધા પાવર છે તો અહીંયા વધારે પરફોર્મન્સ સારું થશે. ડુ યુ એગ્રી વિથ ધીસ પોઈન્ટ? ના પાર્શિયલી એગ્રી. એમાં એવું છે કે જે પાવર્સ અત્યારે મેં આપને મારા વક્તવ્યમાં પહેલા જ કહ્યું કે કેટલીક એવી બાબતો છે કે જે કન્ટિન્યુઅસ ફોલો છતાં પણ આગળ નથી વધતી હોતી, એવામાં મેયર્સની પાસે પાવર્સ હોય તો પ્રજાકીય કામો ઝડપભેર થઈ શકે. એ જ આની પાછળનો કોન્સેપ્ટ છે. વયસ્થાનો ઘણા છે હું જાણું છું, તેમ છતાં પણ આમાંથી નેરેટ એટલું જ કરવાનું છે કે જે કંઈ મહારાષ્ટ્ર, યુપી, એમપી ની અંદર જે પણ નિર્ણયો લેવાયા છે એ નિર્ણયોને હજી અમે જોઈશું, એનો અભ્યાસ કરીશું, અને જે રજૂઆત કરવાની હશે એ નેરેટ કરીને એમાંથી ફિલ્ટર કરીને જ આગળ મોકલવાના છે કે આટલા આટલા મુદ્દા આપણે કરવા જોઈએ. ભયસ્થાનો છે હું જાણું છું, આપણે બધા સમજીએ છીએ. એટલે જે પ્રકારની રજૂઆતોને જે સિસ્ટમથી જવાનું છે એ સિસ્ટમથી જ જઈશું. હજી એની મેયર કાઉન્સિલની સ્થાપના થઈ, જી પહેલી મીટિંગ પછી બીજી મીટિંગ થઈ, જી આ પાવર માટે ના ઠરાવ બરોબર છે. ચાલે જ આવે છે, છતાં કેમ આ લોકો અટકે છે? કેમ મંજૂર? ના એમ નહીં, તમે જો હવે સપોઝ તમને કહું કે સ્ટેટની વાત, ગુજરાત સ્ટેટની અંદર હજી આજે 19-20 વર્ષો પછી આજે મેં ઇનિશિયેટિવ લીધું એટલે આજે આ ફોરમ બન્યું છે. ડિમાન્ડ કરી પણ એવી રીતે કોઈએ ફોરમ બનાવીને રજૂઆત નથી કરી. સિસ્ટમેટિકલી પહેલા અગાઉ રજૂઆત નથી, ફોરમ પહેલી વાર બન્યું છે. એટલે હવે બીજા સ્ટેટમાં જ્યાં આગળ વધ્યા છે, ઓલ ઇન્ડિયા મેયર કાઉન્સિલની વાત કરો. હું એ તો કઉ છું, ઠરાવ પર એટલે એ લોકોને અરે ભાઈ હું એ તો કઉ છું કે ઓલ ઇન્ડિયાનું છે, પણ સ્ટેટ વાઇઝ એ પરકોલેટ થવું જોઈએ. એ સ્ટેટ વાઇઝ હવે થયું છે. હવે સ્ટેટ, દરેક સ્ટેટની અંદર આની અંદર પહેલી વાર નક્કી થયું ભાઈ સ્ટેટમાં મિટિંગો જ થતી નથી. એમણે કીધું ભાઈ અમે તમને કાયમ મોકલીએ છીએ, પણ એટલે અમે પહેલી વાર આ મિટિંગ બોલાય છે. એટલે અમે આનો અભ્યાસ કરીને આગળ વધીશું કે કેટલા
ઝડપથી કામો થઈ શકે એના માટે શું શું નિર્ણયો લઈ શકાય. સ્ટેન્ડિંગ કોન્ટ્રાક્ટના તમામ કામો, ટેન્ડરના તમામ કામો, આર્થિક જોગવાઈઓ, બજેટ એ બધું સ્ટેન્ડિંગમાં જ પાસ થાય છે. એટલે તમારી પાસે સત્તા પાસ થવાનું અને સહી થવાની વાત જુદી છે. આની અંદર અમુકમાં મેયરશ્રી પાસે ડિસ્ક્રિપ્શનરી પાવર છે. દાખલા તરીકે દાખલા તરીકે મોગેજીને ત્યાં 2 કરોડ રૂપિયાની ફાઇલ એ મંજૂર કરી શકે એવા પાવર એમને લીધેલા છે. જે કામો હવે મંજૂરીમાં સપોઝ ક્યારેક એવું બને કે કોઈ એક કામ આપણે તો ક્યાંથી ઘણા કામો મંજૂર નથી થતા હોતા કોઈ કારણોસર, તો એ કારણો આવી રીતે મેયરશ્રી નું ઇન્ટરવેન્શન હોય કે મેયરશ્રી પાસે પાવર છે તો હજુ કરી શકે. કે મેયર 5 વર્ષે બહુ બધો 5 વર્ષે ફરી ચૂંટાય 5 વર્ષે એ આવે છે ને જતા રહે છે. એને કારણે કમિશનર પણ 3 વર્ષે તો જતા જ રહે છે ને. ફોકટ 5-6 વર્ષ રહ્યા આપણે ગૌતમ સાહેબ 6 વર્ષ રહ્યા. એટલે ઇટ ઇઝ અ ડિબેટેબલ સબ્જેક્ટ, પણ આને માટે પાવર વધારવા માટે આગળ વધીએ છીએ. હજી પગાર વધારાની કોઈ બાબત નથી. એની અંદર ખાલી લોકોના કામ, જો અમે તો પ્રજાના સેવક છીએ, લોકોના કામો માટે આગળ વધવાનું છે. લોકોના કામો ઝડપથી થઈ શકે એટલા માટે કશો વાંધો નહીં. અપેક્ષા વધે, કામ માટેની અપેક્ષા વધે, ઓલવેઝ. મારું કામ થતું એવી અપેક્ષા વધે. ના, આપણે તો લોકોના કામ કરવા બેઠા છીએ. હાજી, कितने स्टेट्स में काउंसिल बनाया है अभी तक? अभी लगभग 5-6 स्टेट्स के अंदर इस पे ऊपर काम हुआ है. और जैसा आपने पावर्स वाली बात कही, तो आज अगर डायरेक्ट इलेक्शन होते हो, जनता उसको चुनती है, तो जनता के प्रति जवाबदार को है. जनता काम की अपेक्षा उससे करती है. और यदि वो काम पब्लिक के नहीं कर सकता, नहीं कर पाता पावर के अभाव के कारण, तो निश्चित है कि उसमें से उसकी भी इमेज खराब होती है, पार्टी की भी इमेज खराब होती है. और इसलिए जब आपने उसको जनता का प्रतिनिधि करके चुना है, तो उसको जनता के काम करने के अधिकार मिलना चाहिए. ये 74वें संविधान संशोधन की मंशा है. एक बात. और जैसा मैंने कहा कि गवर्नमेंट में उन्होंने 3 टायर सिस्टम को अपनाया, क्योंकि 91 के बाद में जिस तेजी के साथ में शहरों की जनसंख्या बढ़ना प्रारंभ हुई है और उसके कारण जो प्रॉब्लम्स निर्माण हुई है, तो आज स्टेट गवर्नमेंट डील करे और सेंट्रल गवर्नमेंट डील करे तो उसमें महीने लग जाते हैं. और महीनों तक किसी प्रॉब्लम को पटके रखने का परिणाम ये पब्लिकली बहुत खराब होता है. और इसलिए इमीडिएट उसके ऊपर निर्णय होना चाहिए. उस कॉन्सेप्ट में से मेयर और मेयर एंड काउंसिल को ये पावर्स देने का उस संविधान संशोधन में प्रोविजन है. और जैसा मैंने आगे कहा कि ये अधिकार देने के कारण अगर परफॉर्मेंस के अंदर अंतर आया है, काम की गति के अंदर अंतर आया है, तो उसका निश्चित रूप से जिन जिन प्रदेशों ने लागू किया वहां परिणाम अच्छा आया है. चाहे हम मध्य प्रदेश को देख लें, चाहे कर्नाटक को देख लें, या महाराष्ट्र में उसको जो पार्टी लागू किया है वहां की स्थिति देख लें. धन्यवाद. बोलिए. वार्ड कमिटीज जो बनाने की बात की, What see state government has made some corrections. जैसे जो 3 सीट का मामला था वो इसी ने सी आया हुआ है. मेयर का 2.5 ईयर का हुआ, ये 74 अमेंडमेंट से आया हुआ है. એવી જ રીતે જે વોર્ડ સમિતિની ઓલરેડી રચના કોર્પોરેશનમાં થઈ જ છે અમદાવાદમાં. Yes, we are already involving them. अरे you come to my office, I will explain you. અમારું બજેટ અમારું બજેટ 3 કાઉન્સિલરો અને ત્યાંના લોકો બેસીને તૈયાર કરે છે ને એ પ્રમાણે ચાલે ત્યારે તો આ શહેર પહોંચ્યું છે આગળ વિશ્વ કક્ષાએ. કાકા ચલો, થેન્ક યુ.